हेलो व्यूअर्स, माय सेल्फ एस के चौधरी। स्वागत है आपका अपने चैनल पॉइंटर पर। आज हम नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर फिर से हाजिर हैं। क्लास 12th को एड्रेस करेंगे। क्लास 12th के प्रीवियस वीडियोस का जो ऑनगोइंग टॉपिक है चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से वही चल रहा है। सो आपके सजेशंस, आपकी जो कमेंट्स हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेट्स स्टार्ट। टुडेज टॉपिक इज़ very interesting one and depends on previous one. In previous few videos we have discussed about Coulomb's law. We have discussed about principle of superpositions. What we do in that? What we do in that? We do in Coulomb's law as well as in principle of superposition. What we do? In Coulomb's law, we calculate the force between two charges. Okay. In superposition, we calculate the force, or you can say that net force among number of charges up to the n. It is a system. It is a system. So it is the charge distribution in that particular shape. That shape may be anything, any type. Why I am discussing this one? Because our today topic is linked with these videos or these topics which we have discussed in our previous video. So what I am trying to say that there is only two charges, there is many charges. Okay, matter is solved, so we can calculate the force, this one. But what will happen? What is the limitation of superposition, or where the superposition is not work effectively? There is a condition where the superposition is not work effectively. What is that condition? Condition is this: when the charges are very thickly populated over a surface, or in other words you can say that the charge have very higher density over the surface. That at that time our principle of superposition, or you can say that the system of charge application will not work there to calculate the force. So what we do, we have another effectively working method is here. Today we are going to discuss that method. What is that particular application of that method? As we know that there is a charge distribution. Charge distribution. Do you know that which type of charge distribution the principle of superposition works effectively? Today I will tell you. There is a first type where the charge distribution take place is discrete charge distribution. In that discrete charge distribution, let me discuss what is the discrete charge distribution. In discrete charge distribution, may be possible in that system there is a Q1, Q2, Q3 up to the Qn. The distance between them, the distance between these two charges or n charges are different distance. The distance is not fixed yet. It is variable distance having in that system. So such distance which have the enough space between two charges, or such system which have the enough space between the charges, we can easily apply the principle of superposition to calculate the net or effective force working on this system. So what will happen in another type of system? What is that system? That is continuous charge distribution system. So in that case the space is considerable space between charges. So such distribution of charges is called discrete charge distribution, when we have the considerable space between or among the charges. Then we can apply
to calculate the net force, principle of superposition. What theorem we can apply? Principle of superposition to calculate the net force here. To calculate the net force here, that particular charges. So in that case we have the proper solution. What we can apply? We can apply principle of superposition to calculate the net force. In previous video we have discussed about the principle of superposition in detail. So our formula is for principle of superposition is what? 4 pi epsilon naught. This charge is placed in infinity. The charge is placed in vacuum. Vacuum permittivity is there. Okay. So what is that? Sigma iteration starting from 2 till the end. And what we do there? We take that charge. What charge? 2I, and the distance. What is that distance? 2I square, and vector, or you can say the direction. It is unit vector. So direction, magnitude divided this charge is basically the formula which is used in principle of superposition. So that is what discrete charge distribution. Then another second type of distribution which we are going to concentrate in today's lecture or video, and I will try to my best to explain that topic, is what? Continuous charge distribution. Continuous charge distribution. That continuous charge distribution comes in a picture when the amount of distance between the charges is negligible. There is a number of charges are there, 1 से लेकर n तक, बट उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इतनी कम है कि हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यहाँ इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पा रहे हैं. सो दैट we need another type of method to calculate the force of working among them, to know the effective net force applied by those charges over the surroundings. So to calculating such condition, to overcoming such conditions, we use the different type of method in continuous charge distribution. The continuous charge distribution is defined as the space between the charges is very negligible. So with negligible amount of space between the charges. In that case, we apply the continuous charge distribution system. That continuous charge distribution system is divided into 3 parts. What are those parts? First part is what? Continuous charge distribution in linear. तो linear shape में हमारा continuous charge distribution is the first part. Basically, linear means to say that a conductor or a wire which is having the L length, the breadth is not considered here, only the length will considered. So that is called here continuous linear charge distribution. Okay, so linear charge distribution is this one, continuous linear charge distribution. Second type is what? Continuous charge distribution in what? In the space you can say जिसके पास length और breadth हो, ऐसा कोई भी. तो ऐसा space हमारा क्या हो सकता है? Surface हो सकता है. तो surface में ऐसा distribution हो जाएगा. Now the third is also the part of continuous charge distribution. Continuous charge distribution in volume. तो इस तरीके से हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है वो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हो सकता है वो टोटल 3 शेप्स में होता है. 3 शेप्स में पॉसिबिलिटी है. इस केस में डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, वो किसी भी शेप में हो सकता है, इट डजंट मैटर, बट द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी डिस्क्रीट ओनली. डिस्क्रीट ओनली मींस द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज वेरिएबल, इज अ डिफरेंट वन. We can say that R1 is not equal to R2 is not equal to R3. So that is the discrete one. But when we are not able to calculate the distance, like this charge is overlapped each other, in such case
we don't have very small amount of distance and we are able to neglect, we are able to ignore it, that distance. So we come to this topic is called continuous charge distribution, and we want to calculate the effect of force there over the surroundings. So we use that continuous charge distribution in our today topic is basically considered. It is an important topic and interesting one which will generally comes in our examination in a different form. It is very internal topic. Here we have the charge density in different type of shapes. Means to say that linear charge density, surface charge density, or volume charge density. So few new terms will come, and that will be covered in, that will be used in next chapter, as well as, or you can say that fourth or fifth chapter, to calculate the different type of things in AC also. So let's start all those three types, we one by one discuss. First type is what? First type हमारा है linear charge distribution. First type is our linear charge distribution. तो सीधा से ऐसी कोई भी एक लेंथ हो सकती है जो बहुत दूर तक, एक इनफाइनाइट लेंथ 0 से L भी ले सकते हैं, और हम एक पर्टिकुलरली यहाँ पर हम एक L डिस्टेंस लेके भी चलेंगे, ठीक है ना. तो दैट इज अवर कॉन्टिन्यूस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. कॉन्टिन्यूस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिख दिया है, टाइम वेस्ट ना हो, हम अपने टॉपिक पर कंसंट्रेट करें, बाकी तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं. तो इसकी मान लीजिए जो लेंथ है वो L है, यहां से लेके यहां तक की, शुरुआत से लेके एंड तक की, ठीक है. और इस सब पर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. और हमने क्या करा, यहां पर एक Q0 नाम का एक टेस्ट चार्ज रख दिया. ये हमारा एक टेस्ट चार्ज है. टेस्ट चार्ज हम इसको इसलिए बोल रहे हैं कि ये, इसकी वजह से इन पर, इस लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है. बट इस पर होने वाले इफेक्ट की वजह से हम इनके बिहेवियर को जान जाएंगे. सो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज कैन बी पॉजिटिव and negative, there is no issue, but we can calculate the effect over this test charge due to these linearly distributed charge. So we will use test charge in many applications or upcoming 2 applications also. So concentrate over the test charge is a charge which is not going to affect the system on which we are going to finalize few things. So continuous linear charge distribution में हमें यहाँ पर अब समझना होगा. अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा. अब देखते हैं क्या. अब यहाँ पर हम एक छोटी सी डिस्टेंस लेट कर लेते हैं. टोटल डिस्टेंस में से मान लेते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर डिस्टेंस है वो dl है, डिफरेंस ऑफ l है. तो डिफरेंस ऑफ l ले लेते हैं, और दैट फ्रॉम दैट डिफरेंस ऑफ l के मिड से इस Q0 के बीच की डिस्टेंस को हम r ले लेते हैं. क्या ले लेते हैं? हम r ले लेते हैं. तो Q0 जो कि टेस्ट चार्ज है, और जो dl डिस्टेंस हमने मानी है उसके बीच में जो टोटल चार्ज होगा वो उस पर हम कैलकुलेट करेंगे. एज यू नो दैट रादर देन कैलकुलेटिंग दिस टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, वी कंसिडर्ड एज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लेस वेयर वी कैन कैलकुलेट इजीली द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन वी कैन इंटीग्रेट द अप टू द टोटल लेंथ. So easily we can find out the total amount charge distributed over this, the net force offered by this continuous charge distribution over the linear shape. So we have studied in previous class as well as, and we are studying in this class also, that we are calculating with the help of integration method, which we use for this purpose. Okay, rather than going to I want to check the average of my bike, and for checking that average, what I will do, is it necessary to put all fuel burn and then I can check? I can check it that how 1 kilometer is 1 kilometer distance is covered about that particular X amount ml petrol or diesel. Then I can check the average of that bike. No need to burn all fuel which is containing the in a fuel tank. Okay, so that is integration method. We can calculate up to the, and vice versa also. True that distance ना करके हम distance ना जाके
हम और तरीके से भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ऐसे करके हम उसमें चलते रहते हैं। अभी तो हम यहाँ पर कॉन्टिन्यूस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। इसमें हमने यहाँ पर dl जो शेप है, इसमें हम मान लेते हैं कि यहाँ इस जगह हमारा जो चार्ज होगा वो dq होगा, इस जगह जो हमारा चार्ज होगा वो dq होगा, क्योंकि टोटल चार्ज हमारा q होगा। उसमें से हमने एक डिस्टेंस, टोटल लेंथ हमारी l होगी, उसमें से हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज कहाँ पर लिया है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस dl पर लिया है। तो डिफरेंस ऑफ L taking the charge dl, or you can say holding the charge dq on the distance, or you can say length dl, or from that point that distance, the distance between test charges is small r. I am taking it as a small r. So that the dq is what? dq is charge element or a small amount of charge, a small amount of charge. So that is dq, that is dq. Now here to calculate it, we have the very interesting topic is here, linear charge density. The symbol is this, is lambda. What is that symbol? Is lambda. It is Greek letter. Okay, lambda. Lambda. Okay, that is the lambda here. So that is the distance L here. So linear charge density is lambda. What is the linear charge density? The question must be raised in your mind. What is the linear charge density? Linear charge density क्या होगी? हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं. It is the amount of charge. देखिए डेंसिटी टर्म जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कुछ उसी तरीके से. It is amount of charge. अमाउंट ऑफ चार्ज हम डेंसिटी से क्या देखना चाह रहे हैं, उस हमने लेंथ पर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है. इट इज एन अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ. तो डेंसिटी को हम मानकर चल रहे हैं यहां पर लैम्डा. डेंसिटी को हम क्या मानकर चल रहे हैं, लैम्डा. किसकी, चार्ज की डेंसिटी को. कहां पर, इस लीनियरली चार्ज पर डिस्ट्रीब्यूटेड. तो अगर हम अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा जो चार्ज होगा, जो इस डिस्टेंस पर प्रेजेंट है dl डिस्टेंस पर, अगर मैं उसमें डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ओवर दिस डिस्टेंस हमारा आ गया. कौन सा वाला आ गया, यहाँ पर जितना भी चार्ज हमारा था वो सारा हमारा एक तरीके से हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया. तो इस dl डिस्टेंस में जो चार्ज अवेलेबल है वो लैम्डा इंटू dl हो गया, क्योंकि dl लैम्डा क्या है, हमारी चार्ज डेंसिटी है. ओके, और चार्ज डेंसिटी क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ. मैंने बॉक्स में बंद कर दिया है, अलग से एक डेफिनेशन है जो आपको याद करनी है. और हमारा जो फॉर्मूला बनकर आ सकता है वो इस तरीके से बनकर आ सकता है, लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन dl. ओके, सो हियर इन द डेफिनेशन व्हाट आई एम कंसीडरिंग, dl को मैंने एज ए यूनिट माना है. यूनिट मानने से जो मेरा चार्ज है वो किसके बराबर हो गया, डेंसिटी के. या मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो लैम्डा किसके बराबर हो गया, चार्ज के, टोटल चार्ज के. वही मैंने यहाँ पर लिखा, इट इज अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ. तो डेंसिटी क्या है, इट इज अमाउंट ऑफ चार्ज, इट इज अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ. ऐसे ही हमारा जो सेकंड है हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें भी हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी होगी. और जो थर्ड है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें भी हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी. तो डेफिनेशन लमसम वही रहेगी. अब वो इसकी ऐसा यूनिट और देख लेते हैं, जो यहाँ पर इसकी ऐसा यूनिट निकल कर आएगी चार्ज डेंसिटी की, वो क्या निकल कर आएगी, चार्ज डेंसिटी की क्या निकल कर आएगी, कॉलम पर मीटर. ये इसकी यूनिट निकल के आ गई. तो जब इतना हमें पता चल गया तो ये हमने चार्ज डेंसिटी आखिर निकाली क्यों है, हमने इसलिए निकाली है कि हमारे पास कॉलम्स ने फोर्स कैलकुलेट करने के लिए पहले से ही फॉर्मूला दिया हुआ है, और उस फॉर्मूले को हमने अलग जगह यूज करा है.
तो अगर हम नेट फोर्स निकालना चाहें कि भाई ये जो चार्ज है, ये जो यहाँ पर डीएल चार्ज ने तो चलो ठीक है जो सा भी है, लेकिन अगर हम नेट फोर्स निकालना चाहें या स्मॉल फोर्स निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा वो बेसिकली डीएफ ही होगा, इन दोनों के बीच में जो होगा वो डीएफ होगा, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स होगा, या उसको स्मॉल एफ मान लो, स्मॉल एफ फोर्स मान लो। तो स्मॉल एफ को कैलकुलेट करेंगे तो पूरा एफ आ जाएगा। तो इस तरीके से हम उसको इंटीग्रेट करके टोटल बना सकते हैं। सो हियर आई एम टेकिंग एज अ टोटल वन। सो हम नेट चार्ज निकाल लेते हैं, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं फॉर टोटल लेंथ एल हाउ मच चार्ज वी प्रेजेंट। तो अगर हम इससे सिर्फ इससे ही देखें, टोटल ना देखें पहले, तो हमारा एफ क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों चार्ज आ जाएंगे हमारे कौन कौन से, एक तो यहाँ पर जो चार्ज अवेलेबल है वो, और एक ये। तो Q1 और Q2 हमारे इस तरीके से हो जाएंगे। तो हमारा Q1 और Q2 हो जाएगा, Q1 इसको मान लो और Q2 इसको मान लो। तो फॉर्मूले में हम इसको डायरेक्ट रख देंगे यहाँ पर। तो Q0 dQ डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है यहाँ पर, और ये वेक्टर फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर हम इसको आर कैप ले लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा एक स्मॉल एफ आ गया कैलकुलेट होकर, ये हमारा स्मॉल एफ आ गया इसके बीच में। बट हमें तो एंटायर एल लेंथ पर निकालना है, क्या लीनियर, हमें तो एंटायर एल लेंथ पर एफ नेट फोर्स निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम करते हैं इसका फर्दर प्रोसेस। तो टोटल फॉर टोटल लेंथ, फॉर टोटल लेंथ L, the force F net will be, क्या फोर्स होगा हमें निकालना है, F net निकालना है। तो क्या होगा F net, टोटल फोर्स जो होगा वो मैं इधर निकाल देता हूं, इधर देखिएगा, वो इधर निकाल देते हैं, ठीक है, इधर निकाल देते हैं इसको। तो हमारा जो नेट फोर्स होगा F नेट फोर्स, वो नेट फोर्स कुछ इस तरीके से होगा, इसमें हम कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेते हैं। तो ये कांस्टेंट रहेगा हर टर्म में Q0, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि हम चार्ज को हमेशा वैक्यूम परमिटिविटी के साथ यूज करेंगे, और 4 पाई भी कांस्टेंट है तो वो आउटसाइड आ जाएगा। और हम इंटीग्रेशन करेंगे टोटल लेंथ के रेस्पेक्ट में, टोटल लेंथ के रेस्पेक्ट में, लेंथ की लिमिट्स के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा, वो हमारा अंदर क्या बचेगा, हमारा अंदर बचेगा, हमने ये भी बाहर ले लिया और ये भी बाहर ले लिया, तो हमारा अंदर बचा dQ अपॉन आर स्क्वायर, dQ अपॉन आर स्क्वायर आर के। अब ध्यान से देखिएगा, जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो बेसिकली हम लेंथ के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ओके, हम लेंथ के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, बट हमारा यहाँ पर dQ के रेस्पेक्ट में आ रहा है। तो हम यहाँ से dQ का वैल्यू ले लेंगे। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है। दोनों इक्वेशंस को अगर हम यूज करें तो dQ की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारा जो F नेट निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा पर्पस था, जो कि हमारा एजेंडा था कि भाई कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आखिर कितना नेट फोर्स लग रहा है। तो लैम्डा DL आर स्क्वायर आर कैप हमारा नेट फोर्स लग रहा है, यही हमारा रिजल्ट है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का आपको फॉर्मूला मिल गया। तो इसमें सारे प्रोसेस में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और जो आपको बिल्कुल समझ के चलना है, वो एक ये है, एक ये फॉर्मूला आपको याद करके चलना है, और एक ये फॉर्मूला आपको समझ के, देखो रटने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको प्रोसेस को समझना पड़ेगा। सो नोट कर लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं हट जाता हूँ, और इसको नोट्स बना लेना, लिख लेना पॉज करके या रिवाइंड करके। बार बार देखने से ही होगा, प्रैक्टिस करने से ही होगा, वैसे नहीं हो पाएगा। तो जिस तरीके से हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एफ नेट फोर्स फाइंड आउट करा है, उसी तरीके से हम अपना सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी नेट फोर्स फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में समझ में आ गया है तो बहुत अच्छे से सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई भी गुंजाइश रह गई है, इफ देयर इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजन इन योर माइंड, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी सेम प्रोसेस रिपीट होने वाली है, थोड़ा बहुत चेंज होगा, तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा, और जिसको क्लियर नहीं हुआ है उसको और ज़्यादा क्लियर इसमें आ जाएगा, तो इसमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो सेकंड हमारा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें एक सरफेस लेना पड़ेगा और उस पर वही कंडीशन होगी कि चार्ज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड है, यानी कि बहुत सारा चार्ज उस सरफेस पर है। तो यहाँ पर लीनियर ना कर हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। तो हमारा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड टाइप है हमारा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कॉन्टिन्यूस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम एक सरफेस ले लेते हैं, हमने एक सरफेस ले लिया, इस सरफेस का हम सरफेस एरिया S मान लेते हैं और इस पर टोटल चार्ज Q पड़ा हुआ है, ठीक है। बट ये तो टोटल की बात हो गई। अब हमें एक छोटा सरफेस लेना पड़ेगा इस पर, मान लेते हैं ये dQ इस पर चार्ज है और इसका जो सरफेस एरिया है वो ds है, ठीक है। और इससे इस शेप से, छोटे वाली शेप से जो हमारा टेस्ट चार्ज है Q नॉट, उसकी जो डिस्टेंस है वो r वेक्टर है, उसकी जो डिस्टेंस है वो r वेक्टर है। किससे? जो हमने ये अंदर एक सरफेस एरिया लिया है इससे इसकी डिस्टेंस है। तो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस पूरी बॉडी पर बहुत सारा चार्ज पड़ा हुआ है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पूरी बॉडी पर पॉजिटिव बहुत सारा चार्ज, इनफाइनाइट चार्ज। उसमें से हमने एक छोटा सा सरफेस एरिया ds नाम का ले लिया और जिस पर dq अमाउंट चार्ज प्लेस्ड है, ये है। तो dq हमारा वैसे आपको पिछले टॉपिक में बताया था क्या है, चार्ज एलिमेंट है सरफेस पर। बिल्कुल सेम वैसे ही कर रहे हैं जैसा हमने प्रीवियस में करा था। dq हमारा इस एलिमेंट है, इस एलिमेंट शेप के ऊपर। अब हमारे को लेना होगा यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है हमारी, इसका मैं सिंबल आपको दे देता हूं। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो हमारी होती है वो होती है सिग्मा। ये भी एक ग्रीक लेटर है जिसको यहाँ पर ऐसे हम यूज कर रहे हैं, सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा छोटा सिग्मा बड़ा सिग्मा होता है, तो उस तरीके से आप देखेंगे। तो ये सिग्मा है छोटा वाला, इसको यूज करते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? जैसा कि हमने अभी करा था सेम वैसे ही करेंगे। इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, इट इज, बताइए जरा क्या था? इट इज अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो यह वह चार्ज होगा जो इस सरफेस पर प्रेजेंट होगा, यूनिट सरफेस पर प्रेजेंट होगा। वो चार्ज जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो डेंसिटी के बराबर होगा, वो डेंसिटी के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सरफेस पर जो चार्ज प्रेजेंट है वो सिग्मा डेंसिटी का मल्टीप्लाई उस सरफेस एरिया से कर दें तो हमारा उस पर प्रेजेंट टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू dq अपॉन ds। ये हमारा फॉर्मूला बनकर आ गया, ठीक है। और इसकी ऐसा यूनिट भी हम लिख सकते हैं सरफेस चार्ज की, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में सरफेस चार्ज डेंसिटी और वैल्यू देकर उसके पीछे उसकी यूनिट लगा देता है। इससे भी पहचान हो जाती है कि ये मीटर स्क्वायर डिस्टेंस पर पड़ा हुआ चार्ज है, यानी कि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोसेस बन जाता है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, जैसा कि हमने उसे इक्वेशन में ही माना था। और अब हम टोटल चार्ज निकालना चाहते हैं कि भाई इस एंटायर सिस्टम पर, यानी कि S सरफेस एरिया पर, टोटल सरफेस पर कितना फोर्स वो ऑफर करेगा, किसके लिए? इस टेस्ट चार्ज के लिए। यहाँ पर भी ये टेस्ट चार्ज ही है, जैसा कि वहां पर था। Q नॉट जो लेते हैं वो टेस्ट चार्ज ही होता है। तो चलते हैं आगे, हम अपना टोटल फोर्स निकालते हैं। तो टोटल फोर्स, यूनिट फोर्स निकालोगे तो भी वैसे ही आएगा। स्मॉल एफ अगर हम निकालना चाहें तो इसके बीच में वो भी ऐसे ही आ सकता है। तो स्मॉल एफ, अगर हम स्मॉल एफ सिर्फ इसके बीच में देखें, इस छोटे वाले सरफेस के बीच में देखें, तो कांस्टेंट टर्म बाहर ले लीजिए Q नॉट, या सीधा सीधा पहले सिंपल तरीके से कर लीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम के लिए परमिटिविटी है, ठीक है। और इस टोटल की वैल्यू 9 × 10⁻, आपको बताई हुई है पहले ही, प्रीवियस वीडियो आप देख लें, और उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। तो Q नॉट इंटू dq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर विद डायरेक्शन। ओके, नाउ टोटल फोर्स अप्लाई बाय सरफेस
कैपिटल एस, ठीक है ना। टोटल एस कर्व सरफेस जो उसने है, उसने क्या फोर्स अप्लाई करा वो देख लेते हैं। तो हमें टोटल फोर्स निकालना है, तो टोटल फोर्स निकालने के लिए हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो क्या इक्वेशन बना लेते हैं वो देखेंगे। तो नेट फोर्स जो हम निकालना चाह रहे हैं वो निकल के आ जाएगा यहाँ पर, और इसका हम कर देंगे Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सारी कांस्टेंट टर्म मैंने बाहर ले ली और जो वेरिएबल क्वांटिटी है उसका इंटीग्रेशन कर दिया विद रेस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। तो हमारा अंदर क्या बचा, dq बचा, dq रह गया अंदर, r स्क्वायर रह गया, r कैप रह गया। तो ये तो एक ही बात है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो गए, r स्क्वायर और r कैप। As you know that I told you in the previous video that we are integrating with respect to surface, तो term will be equation 1 और equation 2 से हम क्या ले लेंगे, from equation 1 और 2 की help ले लेंगे। from equation 1 and 2 क्या निकल कर आएगा हमारा निकल कर आएगा रिजल्ट F net Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और dq की जगह यहाँ से सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा द स्मॉल सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस r स्क्वायर, r कैप वगैरह ये रख देंगे। ये हमारा सरफेस के द्वारा ऑफर किया गया नेट फोर्स आ जाएगा किस पर, इस टेस्ट चार्ज पर जो नेट फोर्स ऑफर हुआ है उसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो एक आपको ये थोड़ा सा इस पे कंसंट्रेट करना है, इस पे कंसंट्रेट करना है, और ये डेफिनेशन भी आप अपने पास रखेंगे समझते हुए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारा थर्ड जो है इसमें वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी भी अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे रह रहे हों जिनको ये दोनों में कुछ ना कुछ इशू रह गया हो, तो वॉल्यूम को वो ध्यान से देखेंगे। वॉल्यूम थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, दोनों से थोड़ा सा, बट आपको बिल्कुल आसान लगेगा समझने में। और क्वेश्चन जो आते हैं जनरली वो वॉल्यूम से ज़्यादा पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल जो बनते हैं वो भी क्वेश्चन जो हैं वो उससे ज़्यादा बनते हैं। सरफेस से भी बनते हैं, ऐसा नहीं है सरफेस से नहीं बनते, लेकिन अगर हम बोर्ड लेवल के एग्ज़ाम की बात करें तो हमारे लिए तीनों ही अच्छे टॉपिक हैं, हमें तीनों पर ही कंसंट्रेट करना चाहिए। इस बार हम जो यूज़ करेंगे वो वॉल्यूम शेप यूज़ करेंगे। हमारे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एक वॉल्यूम शेप पर है। एज वी नो दैट कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। So here we are taking the volume shape. You know that volume has the length, breadth and height. We are also drawing such shape. So that is your shape which have the continuous charge distribution. So we can consider the volume capital V, and that over that capital V volume we have the total charge capital Q. Okay. But फॉर एंटायर प्रोसेस को कैलकुलेट करने से बेटर ये कुछ छोटा सा पीस ले लीजिए, उसमें आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिए, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। मैथमेटिक्स ने हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है इसमें इंटीग्रेशन की, उससे हम सारी कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ जाएगी, उसमें टाइम भी बचेगा और एफर्ट्स भी नहीं लगेंगे। तो थैंक यू फॉर आवर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर। इसके बीच का जो डिस्टेंस मान लेते हैं वो आर कैप मान लेते हैं, इसमें जो चार्ज होल्ड करती है ये जो शेप जो हमने मानी उसे डी क्यू मान लेते हैं, और इसका जो वॉल्यूम हम मान लेते हैं वो डी वी मान लेते हैं, ठीक है ना। डिफरेंस ऑफ वी एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू हमने यहाँ पर इस शेप में कंसीडर करा है। तो इस शेप को लेकर चलते हैं। हमारा जो डी क्यू है वो चार्ज एलिमेंट है। चार्ज एलिमेंट जो है ये सरफेस नहीं है, वॉल्यूम है। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये वॉल्यूम, कॉन्टिन्यूस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हमारा थर्ड टाइप है, लास्ट टाइप है किसमें, हमारा कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हमारा कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें 3 डिफरेंट टाइप ऑफ डेंसिटी हम यूज करते हैं, दैट विल मेक अस बेनिफिट इन न्यूमेरिकल एज वेल एज इन थ्योरिकल। तो कंसंट्रेट ऑन द कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बैक टू द टॉपिक, चार्ज एलिमेंट। चार्ज एलिमेंट को हमने क्या माना है, चार्ज एलिमेंट को हमने डी क्यू माना है। नाउ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सिंबल हम यहाँ पर आपको बता देते हैं पहले, फिर हम आगे इसकी डेफिनेशन का डिस्कशन करेंगे। तो हमारा जो सिंबल है जो ये आपको दिख रहा होगा ये रो है, RHO। ये भी एक ग्रीक लेटर है जो हम डेंसिटी में यूज करा करते थे 9th क्लास वगैरह में। तो रो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं,
अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी की, वो देख लेते हैं. इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज. कैसी डेफिनेशन बनाई थी हमने फर्स्ट और सेकंड में? सेम वैसे ही ले लेते हैं. इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट, यहां पर ले लेंगे वॉल्यूम. सेम आ रहा है ना? पहले हमने क्या लिया था? लेंथ लिया था. दूसरे में हमने क्या लिया? सरफेस लिया है, सरफेस एरिया लिया. अब हमने उसको किससे रिप्लेस कर दिया? वॉल्यूम से. तो जैसी शेप है वैसा ही हम यहाँ पर लिख रहे हैं. डेफिनेशन तीनों में सेम है ऑलमोस्ट. तो हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ रो से. देखते चलेंगे इसमें हमने करना क्या है. अगर हम इस सरफेस पर टोटल कितना चार्ज प्रेजेंट है वो निकालना चाहें, जिसको हम dq से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक्चुअल में होगा इस सरफेस की चार्ज डेंसिटी जिसको हम रो से डिनोट कर रहे हैं, या इस वॉल्यूम की चार्ज डेंसिटी जिसको हम रो से डिनोट कर रहे हैं, इनटू दैट वॉल्यूम इनटू द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. तो वी कैन आल्सो राइट लाइक दिस dq अपॉन dv, दैट इज अवर volume density of charge. So SI unit of this density we also write it coulomb meter cube. Coulomb is for charge and V is length breadth height meter cube. तो अगर हम स्मॉल f निकालना चाहें सिर्फ और सिर्फ इस छोटी सी शेप की वजह से, इस पर जो लग रहा फोर्स है, तो स्मॉल f जो हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि ये कांस्टेंट टर्म है वैक्यूम के अंदर. हमारा टेस्ट चार्ज Q नॉट और हमारा जो छोटा सा चार्ज प्रेजेंट है dq, किस पर? उस छोटे से सरफेस पर जो हमने यहाँ पर लिया है, एलिमेंट सरफेस जो हमने यहाँ पर लिया है छोटा सा r² डिस्टेंस, और ये हमारी डायरेक्शन आ गई आगे. तो इसी तरीके से हम टोटल नेट फोर्स या टोटल फोर्स जो निकालेंगे वो किस पर निकालेंगे? ऑफर्ड बाय वॉल्यूम V. तो हम चलते हैं वन स्टेप अहेड. सो इन दैट केस अब हम देखेंगे कि क्या हमारा निकल कर आ रहा है. तो F नेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू द वॉल्यूम dq डिवाइड बाय r². तो जो हमारी कांस्टेंट टर्म है बाहर आ जाएगी ये डाल के. अब तो इक्वेशन 2 इसको मान लेते हैं और इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं. So from equation 1 and 2, equation 1 and 2, तो क्या आएगा हमारा नेट फोर्स निकल के जो आएगा हमारा, वो क्या आएगा निकल के? नेट फोर्स हमारा निकल कर आएगा Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम. dq की जगह हम यहाँ से रख देंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू E r², r वेक्टर की फॉर्म. ये डायरेक्शन हमारी आ गई. इस तरीके से हमारा ये तीसरा चार्ज भी कैलकुलेट होकर आ गया. तो एज वी नो दैट Coulomb's law have own limitations. It can calculate force between two charges, and principle of superposition is not effectively work over the continuous charge distribution. So overcoming this problem, this special problem, we have another method is continuous charge distribution with this charge density concept. So you have to understand this charge density. ये और कहीं नहीं आने वाला है, ये इसी टॉपिक में यूज हो रहा है सबसे पहली बार. चार्ज डेंसिटी कहाँ यूज हो रहा है? इस टॉपिक में. तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज द यूएसपी ऑफ दिस वीडियो और दिस टॉपिक. तो आपको इस पर कंसंट्रेट करना है. मैंने बॉक्स बना दिया है सभी जगह. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और ये फॉर्मूला आपको विद एप्लीकेशन याद रखना है. इस तरीके से आपको चलना है. कमेंट जरूर करिएगा और मुझे बताते रहिएगा. थैंक यू वेरी मच. मैं आपका पॉइंटर आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ. थैंक यू वेरी मच.